In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in today's session. And today we are going to talk about the OD professionals' competencies and the ethics related to the perspective of development and OD practitioners' linkage with the organizational facility. So last time we were talking about the competencies of an OD practitioner, and we discussed that there are different sets of competencies required by OD practitioner, including interpersonal skills, general consultation skills, organization development, theory related, skills and proficiencies. So these are generally speaking the list of competencies required. Then I took you to the detailed list of competencies required by the OD practitioner, and those details were coming from the 20th edition of Organizational Change and Development Competency Effort. And in this context, we talked about the details related to the marketing, enrolling, contracting. Then we talked about mini assessment, data gathering, and obviously we were also covering the diagnosis part. So when we talk about the diagnosis related organizational practitioners competency, organization development practitioner competencies. So it is said that an effective organization development practitioner can um, gather data to identify first steps of transition, watch for deeper issues as data is gathered, suspend judgment while gather data, know when enough data has been gathered. So these are all the aspects which are related to the OD practitioner, and one must be practicing all these things when dealing with the organizational facility. So there is a long list of these competencies. You can comfortably go through these details. I'll provide you the document. So I'm just covering some of the main aspects right now. Supposedly, when we talk about the feedback related competencies, it is said that an effective organization development practitioner can prepare leadership for the truth, because many a times people are not ready or not willing even to know about the truth related to their organizational facility, because problems के बारे में नेचुरली स्पीकिंग कोई जानना नहीं चाहता है. हर कोई यही जानना चाहता है कि सिर्फ अच्छी खबर उन तक पहुंचे, बट स्टिल फीडबैक में बाज़ औक़ात आपको ऐसी चीज़ों की निशानदही की जाती है कि जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर taking place, which are growing, or which are evolving even. So लीडरशिप को प्रिपेयर करना कि वो इस प्रॉब्लम को सुने, समझें और फिर ऑब्वियसली उसके हल की तरफ वो पहुंचें. सो उस मकसद के लिए OD प्रैक्टिशनर में ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि दे शुड बी एबल टू प्रिपेयर लीडरशिप फॉर द ट्रुथ, involve participants so they begin to own the process, synthesize the data gathered into themes, and then create a non-threatening atmosphere, facilitate complex emotional patterns. And how to develop those particular themes, इसके बारे में इंशाल्लाह आपसे मैं discussion करूँगा when we'll be talking about the feedback part in the chapter, कि किस तरीके से themes को develop किया जाता है related to organizational feedback. Okay. So प्लानिंग से रिलेटेड जब हम competencies की बात कर रहे हैं तो an effective organization development practitioner can distill recommendations from the data, focus attention that generates high impact at lowest cost. So these are planning related different aspects which he or she should be having. Related to the participation, it is said that an effective organizational development practitioner can facilitate a participative decision making process, because participation से लोगों की जो resistance है वो भी कम हो जाती है, and they are more contributing towards the development and they are more contributing towards the change which we are trying to incorporate. So obtain direction from leadership, obtain commitment from leadership, because direction और commitment के बगैर आपका वहाँ पर कोई भी जो अमल है वो मटीरियलाइज टेक्निकली नहीं हो पाएगा. सो लीडरशिप को साथ लेकर चलना, ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट की विलिंगनेस को साथ लेकर चलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और किसी भी स्टेज पर OD प्रैक्टिशनर इज नॉट सपोज टू द चैलेंज द मिशन एंड विजन एंड द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
बिकॉज कंसल्टेंट का काम वहाँ पर एक प्रॉब्लम को, एक इशू को हल करना है, रादर देन कि वो उनकी डायरेक्शन को ही चेंज करने की बात वो शुरू कर दे. सो दैट इज एक्चुअली एंड टेक्निकली नॉट मैनी अ टाइम्स द सिनेरियो जिसके ऊपर ओडी प्रैक्टिशनर शुड बी कमेंटिंग. ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट इज देयर टू डिसाइड फॉर देयर डायरेक्शन, इट्स नॉट द ओडी प्रैक्टिशनर. सो को create an implementation plan, obviously उनकी willingness के साथ co-create an implementation plan that is concrete, that is simple, that is clear, that is logically sequenced, that is having implementation plan that is results oriented, that is measurable, that is rewarded. तो ये तमाम चीजें हैं जो एक OD practitioner को top management के साथ मिलकर implement करनी है. इसी तरह जब हम interventions की बात करें तो you can see at the competency number 75 that reduce डिपेंडेंसी अपॉन कंसल्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक अच्छा कंसल्टेंट हमेशा वो होता है कि जो सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करके वहां से वापस आए. ओके, इट वुड बी अ बैड प्रैक्टिस कि आप अपनी डिपेंडेंसी को ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंटेन रखो बिकॉज यू वांट टू अर्न मोर. ओके, बेटर ऑप्शन इज कि आप जब एक इशू के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज हुए हो तो उस ऑर्गेनाइजेशनल इशू को, प्रॉब्लम को, पर्सपेक्टिव को हल करके when you are out to the organization is having self renewal capability. Okay, so जो 75th हम competency देख रहे हैं कि an effective organization development practitioner can reduce dependency upon consultant, instill responsibility for follow through, intervene at the right depth, pay attention to the timing of activities, facilitate concurrent interventions, help manage impact to related systems. So these are all the intervention issues जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह इन चैप्टर डिटेल में बात वो करेंगे. So evaluation की जब हम बात करते हैं तो it is said 82nd हम देख रहे हैं कि integrate research with theory and practice, that is very important. और एक बहुत interesting debate है कि theory and practice में sometimes there is a difference, but remember one thing, that there is no difference between theory and practice, because there is no theory which is developed without a practice, and there is no practice which would not have any theory. So इस layman excuse से बाहर आ जाइए, इस illiterate discussion से बाहर आ जाइए कि theory and practice आपस में link up नहीं करती हैं. They are 100% linked. And I will be really surprised if you can tell me any theory which is not based upon practice and any practice which is not based upon theory. Secondly, इसमें बहुत important बात याद रखिएगा कि sometimes certain theories they become orthodox, and sometimes there are certain practices which become outdated. ठीक है, तो ये चीज यकीनन हो सकती है कि आप किसी पुरानी थ्योरी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो मॉडर्न टाइम्स में, या आप किसी पुरानी प्रैक्टिस को लेकर आना चाह रहे हो इन थ्योरेटिकल फ्रेम. दैट माल फंक्शनिंग कैन डू हैपन. लेकिन ये आर्ग्यूमेंट टोटली बेसलेस है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है वो आपस में लिंकअप नहीं करती. Okay, no doubt that there is a difference, there is a gap between academia and the industry. लेकिन academia और industry के दरमियान जो gap है, that is not the gap because of the gap in between theory and practice. That gap is because of the communication lacking, जो कि उस लिंकेज को क्रिएट नहीं कर पा रही. तो कम्युनिकेशन गैप को आप थ्योरी एंड प्रैक्टिस के गैप के साथ एसोसिएट वो ना करें. So therefore एक OD practitioner के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि he or she should be able to integrate research with theory and practice. तो दोनों चीजों को साइड बाय साइड हमें लेकर वो चलना पड़ेगा. इसी तरह 83rd देखिए कि initiate ongoing feedback in client consultant relationship, and likewise there are other competencies as well. When we talk about follow up, तो follow up के हवाले से an effective organization development practitioner can establish method to monitor change during the intervention, establish method to monitor change after the intervention even, क्योंकि हमने जब इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए हमें एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो वहां पर इंस्टॉल वो करना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद द फॉलो अप. लाइकवाइज जब हम एडॉप्शन की बात करते हैं तो एडॉप्शन रिलेटेड it is said that transfer change skills to internal consultant, so learning is continuous. आज के सेशन में आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इंटरनल कंसल्टेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं. बिकॉज राइट नाउ हमारा जो मेजर फोकस है इट इज मोर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक्सटर्नल कंसल्टेंट. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंटरनल कंसल्टेंट्स हैं उनमें भी यही कॉम्पिटेंसीज यकीनन होनी चाहिए, और उनके क्या रोल्स हैं इसके ऊपर आज हम डिस्कशन अपनी
वो करेंगे. सो मेंटेन इंक्रीज चेंज मोमेंटम, लिंक चेंज प्रोसेस टू डेली लाइफ ऑफ सिस्टम. सो ये सब आपकी अडॉप्शन रिलेटेड कंपिटेंसीज की लिस्ट जो है वो आ गई. इसके बाद सेपरेशन की जब हम बात करें तो उसमें वो कहता है कि एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर कैन रिकॉग्नाइज व्हेन सेपरेशन इज डिजायरेबल. ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन से मुराद ये है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, व्हेन द प्रोजेक्ट इज डन, तो अब आप अपने आप को विदड्रॉ कर लो उस ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी से, बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज गलती ये होती है कि अक्सर औकात ओडी प्रैक्टिशनर्स अपने आप को इमोशनल एसोसिएशन में ले जाते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन. तो रिमेंबर दैट थिंग कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रैक्टिस. ओके, आपकी किसी किस्म की भी इमोशनल एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए. इट शुड ओनली बी प्रोफेशनल. ठीक है, और प्रोफेशनल एसोसिएशन में यू शुड ऑलवेज बी नोइंग दैट व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड. Okay, when is the time to say goodbye and when is the time to separate yourself from the organizational context. ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन कि यहाँ पर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर कैन रिकॉग्नाइज व्हेन सेपरेशन इज डिजायरेबल. ओके, सो प्रोसेस एनी लेफ्ट ओवर रिलेशनशिप इश्यूज बिटवीन कंसल्टेंट एंड द क्लाइंट. और बाद में आफ्टरवर्ड्स अगर हमारी कोई एसोसिएशंस हों भी तो ऑब्वियसली उन तमाम एसोसिएशंस को हम डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में प्रोफेशनली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा उसको एलेबोरेट कर सकते हैं. Likewise, ensure that learning is continued, leave the client satisfied, plan for post consultation contact. ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जो हमें सेपरेशन के हवाले से वो दरकार होंगी. लाइकवाइज जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो एन ओडी प्रैक्टिशनर शुड बी सेल्फ अवेयर, बिकॉज एज यू ऑल नो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप which we have to take. So an effective organization development practitioner can clarify personal values, clarify personal boundaries, manage personal biases. ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और biases के बारे से भी याद रखिएगा कि nobody is ever able to finish the biases. ठीक है, हमें से कोई भी अपने फेवरेटिज्म को खत्म नहीं कर सकता. we can only control it by getting ourselves aware about it. ठीक है, सो हमारी बायसेस, हमारे जो प्रेजुडिस एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो फेवरेटिज्म्स हैं, दे वुड ऑलवेज रिमेन देयर. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के जो रिलेशनशिप्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के जो मूड्स एंड इमोशंस हैं, दे कैन ऑलवेज रिमेन देयर. ठीक है, तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट बिकम अ मशीन. सो व्हाट वी कैन डू as a human, that we should be able to control our biases and control our prejudice attitudes. So manage personal defensiveness, recognize when personal feelings have been aroused, remain physically healthy while under stress, resolve ethical issues with integrity. तो ये तमाम वो aspects हैं कि जिसमें हम self awareness को highlight कर रहे हैं कि these are all the things required by the OD practitioner, और इन competencies के बगैर OD practitioner is incomplete. Likewise, जब हम interpersonal competencies की बात करेंगे तो it is said that an effective organization development practitioner can develop mutually trusting relationships with others. ओके, तो ट्रस्ट कायम करना बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रस्ट तभी कायम होगा व्हेन यू आर हैविंग सम क्रेडिबिलिटी, व्हेन यू आर डीलिंग विद द एथिकल पर्सपेक्टिव्स, व्हेन यू आर एथिकल एंड ऑथेंटिक लीडरशिप. सो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ओडी प्रैक्टिशनर को वो चाहिए होंगी. सॉलिसिट फीडबैक फ्रॉम अदर्स अबाउट योर इम्पैक्ट ऑन देम, एनर्जाइज अदर्स, उसके लिए आपको एंथुजियाज्म, उसके लिए आपको मोटिवेशन, उसके लिए आपको इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. कोलैबोरेट विद इंटरनल एक्सटर्नल ओडी प्रोफेशनल्स, बैलेंस the needs of multiple relationships, listen to others, and likewise there are a couple of important interpersonal perspectives as well. इसके अलावा देयर इज अनदर कैटेगरी जिसका नाम उन्होंने अदर्स रखा, और उसके अंदर वो बात करते हैं कि इंटरप्रेट क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, इन अ हेल्पफुल मैनर, बिकॉज जब आप पर्टिकुलरली मल्टीनेशनल पर्सपेक्टिव में मूव करते हो तो मल्टीनेशनल पर्सपेक्टिव में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कल्चरल ओरिएंटेशन. तो उस कल्चरल ओरिएंटेशन को समझना, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करना, कल्चरल क्लैश से बाहर आना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत टेक्निकली समझनी और करनी पड़ती हैं. So handle diversity and diverse situations skillfully. Likewise, there are a couple of competencies required by the OD practitioner. So the last one I'm just reading with you, 141, जो उन्होंने competency identify की कि be aware of the influences of cultural dynamics or interaction with others.
ठीक है, तो ये तमाम competencies हैं which are directly required by the OD practitioners, right? So we are coming back to our slides. Here we are. Competencies of an OD practitioner, और उसमें हमने अभी 141 competencies की एक लिस्ट देखी कि जिसमें नो डाउट इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, जनरल कंसल्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के ऊपर हमने कोशिश की कि अपनी एक छोटी सी डिस्कशन वो कर सकें. इसके बाद अगर हम रोल डिमांड्स ऑन ओडी प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो रोल डिमांड्स के हवाले से याद रखिएगा कि ओडी प्रैक्टिशनर वुड बी ऑपरेशनल आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली. ओडी प्रैक्टिशनर की अगर हम मार्जिनलिटी की बात करें तो याद रखिएगा कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू स्ट्रेडल बाउंड्रीज. ठीक है, सो वो लो डॉगमेटिज्म लेकर आए, वो न्यूट्रलिटी को प्रमोट करे, वो ओपन माइंडफुलनेस की बात करे, ओपन माइंडेडनेस की बात करे, ऑब्जेक्टिविटी क्लियर हो, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज ओरिएंटेशन, अडेप्टेबिलिटी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके साथ द ओडी प्रैक्टिशनर शुड बी देयर. बिकॉज अगर जितने आप अपने थॉट प्रोसेस के अंदर रिजिड होंगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस को पिकअप भी करना और उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड भी करना. So that is the reason कि it is advised कि you should be always there कि आप rigidities और myopic जो attitudes हैं उनको avoid करें. लाइकवाइज आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है. जैसे इमोशनल डिमांड में उन्होंने पॉइंट लिखा कि वी विल बी रिक्वायरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस एज यू ऑल मे नो कि इट इज बेस्ड अपॉन सम कंस्ट्रक्ट्स which may include self-awareness, self-regulation, motivation. It would also include empathy, and it would also be talking about social skill. ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए first of all we need to have self awareness, then we need to have self regulation, then we need to have motivation, then we need to have empathy, and then we need to have social skill. ओके, तो ये 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर एनओडी प्रैक्टिशनर इज इनकम्प्लीट. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि IQ से ज्यादा जो चीज हमें इंटरेक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज EQ. ठीक है, तो इमोशनल क्वोशंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस क्वोशंट, बिकॉज when you are dealing with others तो वहां पर आपका जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल इंटेलिजेंस, इन सब की जरूरत हमें ज्यादा होती है. नो डाउट IQ चाहिए, हम ये नहीं बात आर्ग्यूमेंट करते हैं कि IQ इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन जब इन दोनों को रिलेटिवली हम कंपेयर करें तो रिलेटिवली EQ इज मोर रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द IQ. So use of knowledge and expertise, these are all the requirements by the OD practitioner. और जब हम knowledge का जिक्र करते हैं in the discipline of human resource management, तो हमेशा याद रखिएगा कि knowledge would always consist of 3 E's, which are experience, exposure and education. ठीक है, तो our OD practitioner should be having the right level of experience, should be having a proper exposure to the diversity of the organizations and the areas and the cultures, and obviously उसकी एक requirement of education is there, because formalities को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो it would be difficult for us to develop our credibility with the organizations in the industry. Okay dear, now we're going to start a very important discussion related to client versus consultant knowledge. इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम 2 पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बेवक्त वक्त बात कर रहे हैं. एक है कंसल्टेंट का नॉलेज, देन ही और शी इज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, और एक है क्लाइंट का नॉलेज एट द टाइम व्हेन द कंसल्टेंट इज देयर टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट. ठीक है, हमारे पास जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसमें 2 जो ट्रायंगल्स आर मेकिंग अप अ रेक्टेंगल, ये शो ये कर रही हैं. हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं फ्रॉम द बॉटम के यूज ऑफ क्लाइंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो बॉटम पे लिखा हुआ है ऑन द लोअर लेफ्ट साइड, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि दिस शेडेड एरिया, जो क्रीम कलर एरिया हम देख रहे हैं, दिस शेडेड एरिया इज मोर, which means कि in the start the client's knowledge about the organization, about a specified issue and problem is obviously more, because that organization belongs to the client. ठीक है, और कंसल्टेंट का नॉलेज जो अगर हम व्हाइट पार्ट को देखें तो that is very narrow towards the bottom.
ओके, हम बॉटम से डायग्राम को पढ़ना शुरू कर रहे हैं. सो टुवर्ड्स द बॉटम, द नॉलेज पार्ट ऑफ द कंसल्टेंट विच इज द वाइट ट्रायंगल, दैट इज वेरी नैरो. कि स्टार्ट में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, उसके कल्चर के बारे में नहीं पता, हायरार्की के बारे में नहीं पता, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल यू मे नॉट बी नोइंग, सो प्रोसेसेस के बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हमें शुरू में नहीं पता, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन कभी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ नहीं है. So your knowledge is very little, and the client's knowledge is obviously maximum because he or she knows about his or her organization. ठीक है, यहां से कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टार्ट होता है. और many a times it would happen कि अब हम राइट लोअर बॉटम साइड पे देख रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है refuses to become involved, कि आप कन्विंस नहीं कर पाते हो एज ए कंसल्टेंट, एज ए प्रैक्टिशनर, क्लाइंट को कि वो आपको वो प्रोजेक्ट दे. ठीक है, और अक्सर औकात अगर आपके पास कन्विंसिव आर्ग्यूमेंट्स एंड डायलॉग्स हों भी, तो क्लाइंट की कुछ ऐसी कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि द रिजल्ट इज, जो हम बॉटम राइट साइड पर देख रहे हैं, रिफ्यूजेस टू बिकम इन्वॉल्व. ठीक है, बिकॉज उसका बजट कंस्ट्रेंट हो सकता है, उसके पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है, उसकी इमोशनल एसोसिएशन एंड एफिलिएशन हो सकती है कि वो उस प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी दैट पर्सन वांट्स टू लिंगर ऑन विद दैट प्रॉब्लम. तो ऑब्वियसली वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं हो पाता. जैसा कि आपको टाइटल ऑफ द चैप्टर का भी पता होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग. तो एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली कंसल्टेंट और क्लाइंट का आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट है. इसके बाद अगर कंसल्टेंट के पास एंथुजियाज्म हो, मोटिवेशन हो, प्रॉपर कन्विंसिंग डायलॉग्स हो, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट नॉलेज हो रिलेटेड टू द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ दैट इंडस्ट्री, तो कंसल्टेंट क्लाइंट को कन्विंस करना शुरू करता है. जब कंसल्टेंट क्लाइंट को कन्विंस करना शुरू करता है ऐसे पॉइंट्स के साथ जो कि पॉइंट्स शायद क्लाइंट के जहन में ना आए हों, तो वहां से हमारा अगला स्टेप आएगा. अब आप अगेन लोअर राइट साइड पर देखिए, वहां पर लिखा हुआ है लिसन्स एंड रिफ्लेक्ट्स. अब जब क्लाइंट सुनना शुरू कर दे कंसल्टेंट की बात को, लिसन्स एंड रिफ्लेक्ट्स, तो वहां पर अब कंसल्टेंट के पास सारी गेम आ गई है. अब वहां से कंसल्टेंट का नॉलेज, जो व्हाइट ट्रायंगल का अगर आप पार्ट देखो कि नाउ इट इज एक्सपेंडिंग, और वहां पर क्लाइंट जो है ही और शी हैज टू कीप क्वाइट, बिकॉज क्लाइंट ने कभी अपनी कंपनी को, चाहे वो कंपनी उसकी अपनी है, लेकिन उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से, उस डिटेल से पहले नहीं सोचा होता. ओके, तो यहां से जो कंसल्टेंट की गेम है दैट स्टार्ट्स. ओके, उसकी जो डोमिनेंट होने की जो कैपेबिलिटी है, नाउ दैट स्टार्ट्स. ठीक है, इसके बाद अगला जो स्टेज हमारा आता है दैट इज क्लैरिफाई एंड इंटरप्रेट्स. ओके, कंसल्टेंट अब अपने पॉइंट्स को, जो उसने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे, उनको आगे फिर फर्दर वो एलैबोरेट करता है कि इनका इफेक्ट क्या होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या होंगे. तो अब वो उनको फर्दर क्लैरिफाई और इंटरप्रेट करना शुरू करता है. ओके, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इन तमाम स्टेजेस में at any point in time there can be a refusal from the client. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. हो सकता है कि आप अपनी डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सेकंड लास्ट पॉइंट पर हो, even at that point the client says कि थैंक यू वेरी मच, अभी हमें फर्दर बात नहीं करनी है. ओके, तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा कि कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है. क्लाइंट की मर्जी है, क्लाइंट की कंपनी है, वो काम नहीं करवाना चाहता है. यू टेक योर फी, यू टेक योर रिस्पेक्ट एंड से थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड यू वॉक आउट. ठीक है, जिसमें कोई नाराजगी, इसमें कोई झगड़ा, इसमें कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए विच इज नॉन प्रोफेशनल. ओके, सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, हम राइट साइड वाले पॉइंट्स को फोकस कर रहे हैं. क्लैरिफाइज एंड इंटरप्रेट जब वो कंसल्टेंट कर रहा है, तो वहां पर क्लाइंट जो है फर्दर कन्विंस होना शुरू हो जाता है. देन द स्टेज वुड कम जिसको वो लिख रहा है कि प्रॉब्स एंड गैदर डेटा. ठीक है, पहले हमारी सपोजिटली पायलट टेस्टिंग होती है, उस पायलट टेस्टिंग के बाद फिर हम फाइनल अपने गैदर करते हैं डेटा को. सो प्रॉब्स एंड गैदर्स डेटा. सो अब डेटा को आप इकट्ठा करना शुरू करते हो, और ऐसा डेटा आप इकट्ठा करते हो जिसके बारे में क्लाइंट इज नॉट मच अवेयर. ठीक है, वंस एक वेरी इंटरेस्टिंग मेरा डायलॉग हुआ व्हेन आई वाज ऑन अ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो डायलॉग ये था कि द ऑपरेशंस हेड वाज एक्चुअली माय क्लाइंट ओवर देयर, और वो मुझे कहता है कि सुलेमान साहब, आपने मुझे कोई ऐसी बात बतानी है जो मुझे ऑलरेडी पता ना हो. ओके, दैट वाज आवर फर्स्ट सेंटेंस, एक्सचेंज ऑफ सेंटेंस. ठीक है, कि आपने मुझे ऐसी बात बतानी है जो मुझे पता ना हो. एंड रिमेंबर वन थिंग कि आई एम वेरी विजिलेंट एंड वेरी कॉशियस अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी.
ठीक है। सो अब ऑब्वियसली जब इस तरह का डायलॉग आपका स्टार्ट होगा तो आपको कुछ ये भी प्रोब करना है कि व्हाट आर द इश्यूज विच आर ऑलरेडी प्रिवेलेंट इन हिज और हर माइंड, व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट जिसमें कि आप अपनी निगोशिएशन और डिस्कशन को वो लेकर चल सकते हो, एंड दैट इज द पॉइंट जहां पर आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव वो होना पड़ता है, जहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी बहुत कॉन्शियस रहिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उस वक्त करनी चाहिए जब आप विद इन द बॉक्स तमाम रियलिटीज को जान चुके हो। वो अगर आपको विद इन द बॉक्स ही चीजों का नहीं पता है तो ऑब्वियसली हाउ कैन यू क्लेम दैट यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, तो अपने बॉक्स को भी डिफाइन करना सीखें, अपनी लिमिटेशंस को भी डिफाइन करना सीखें, और फिर उसके मुताबिक आपकी मुसलसल जो स्टडी, मुसलसल जो जुस्तजू, मुसलसल जो एक विजिलेंट एंड एजाइल आई ऑन द इंडस्ट्री रखना है, ये बहुत जरूरी है, सो दैट आप यानी कि बहुत जल्दी से इस बात को अंडरस्टैंड कर लो कि इस वक्त लेटेस्ट तकाजे, लेटेस्ट पैमाने वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्रीज को किन चैलेंजेस का सामना है, उन चैलेंजेस के मुताबिक देन यू कैन सेल योर एक्सपर्टीज to get your benefits. And obviously it would be a win-win exchange, or win-win exchange mein what you'll be getting in return would be mostly the financial benefit and your credibility, and what the organization would be getting would be definitely in terms of their higher profitability, productivity and satisfaction of the stakeholders. Okay, so iske baad jab aapne data collect kar liya, again I'm in the middle of the slide के पार्ट को देखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट फीडबैक डेटा। ठीक है, अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया, आपने उस डेटा को इंटरप्रेट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने SPSS को यूज किया, एंड SPSS एज यू ऑल मे नो कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो टू कैलकुलेट द डेटा इंटरप्रिटेशंस फॉर यू। तो अब आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया, अब आपने डिफरेंट एनालिसिस उसके ऊपर रन करके उस डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में वो लेकर आए, और उस प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के मुताबिक आपने जो एक फीडबैक था अपने क्लाइंट को पेश किया कि जनाब ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 2 3 4 5 ये इश्यूज हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं, ये आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस है, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट विद यू। ओके, अब हो ये रहा है कि जो आप अपने कॉन्टेक्स्ट में एज एन ओडी प्रैक्टिशनर डेवलप करते जाते हो, अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द क्लाइंट्स orientation about the issue and the problem is reducing, and the consultant's orientation about the issue and the problem is increasing. ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है कि सपोजिटली यू आर हैविंग हेडेक। ठीक है, आप हेडेक के साथ एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर को शुरू में कुछ नहीं पता कि आपको क्या मसला है। ठीक है, आप खुद जाकर बताते हो कि जनाब आई एम हैविंग सम हेडेक, फिर डॉक्टर आपको डिफरेंट टेस्ट एंड डायग्नोसिस टेक्निक्स आपके साथ यूज करता है, और फिर जो वो टेस्ट करता जाता है, जो वो डायग्नोस करता जाता है, तो नॉलेज ऑफ द कंसल्टेंट, नॉलेज ऑफ द डॉक्टर वो डोमिनेट होता जाता है, और आपका अपना नॉलेज, चाहे कि दर्द आपको खुद है, लेकिन उसके बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में आप बयान नहीं कर पा रहे होते, जो कि डॉक्टर आपको बयान कर रहा होता है। व्हाई? बिकॉज उसके पास जो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, चाहे कि वो दर्द आपका अपना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेम इज द एब्सोल्यूट फिनोमेना कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल हवाले से भी क्लाइंट एंड कंसल्टेंट इज हैविंग एन इंटरेक्शन। इसके बाद जो अगला स्टेप हमारे पास आएगा, दैट इज प्रपोजल्स क्राइटेरिया ऑफ ऑब्वियसली डेवलपमेंट, रिकमेंड्स पर्सपेक्टिव्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए, एंड देन प्लान्स इंप्लीमेंटेशन। एंड डेफिनेटली यही जो पैरामीटर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कंसल्टेंट की डेवलपमेंट ऑफ थॉट का, यही आपका पैरामीटर है ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट इन द बुक। ठीक है, हमने बुक में भी जो चीजों को गो थ्रू करना है, इसी सीक्वेंस में हमने गो थ्रू करना है। ठीक है, जिसमें के लिसन्स एंड रिफ्लेक्ट्स के पैरामीटर क्या होंगे, क्लैरिफाइज एंड इंटरप्रेट्स के पैरामीटर्स क्या होंगे, प्रॉब्स एंड गैदर्स डाटा कैसे करना है, फीडबैक डाटा कैसे प्रोवाइड करना है, प्रपोजल्स क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट कैसे डेवलप करने हैं, देन रिकमेंड्स एंड प्रिस्क्राइब आपने क्या करना है, वहां पर इंटरवेंशन कैसे क्रिएट करनी है, एंड देन ऑब्वियसली आप इंप्लीमेंटेशन को कैसे लेकर आओगे, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पार्ट एज वेल। ठीक है, और जब हम इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर पहुंचते हैं तो दैट इज मोस्टली द टाइम, अगर अब आप अपर साइड ऑफ द साइड पर देखें कि क्लाइंट का जो नॉलेज होता है दैट रिड्यूसेस टू द मिनिमम, और जो कंसल्टेंट का नॉलेज है, बिकॉज वो उसको टेक्निकली स्टडी कर रहा है, वहां पर जो कंसल्टेंट्स नॉलेज इज एट द मैक्सिमम। ओके, सो दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स कि क्लाइंट और कंसल्टेंट किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट वो करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इन तमाम डेवलपमेंटल स्टेजेस में किसी भी स्टेप के ऊपर देयर कैन बी अ विड्रॉल।
ओके, और विदड्रॉ जरूरी नहीं होता कि क्लाइंट ही करेगा, समटाइम्स कंसल्टेंट वुड फील कि इस पॉइंट से ऑनवर्ड अब हम नहीं चल सकते, तो द कंसल्टेंट इज गोइंग टू से थैंक यू वेरी मच टू द क्लाइंट एंड वुड लीव द सिचुएशन। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये बात बड़ा क्लियरली याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं कुछ दिखाऊंगा इन कपल ऑफ मोमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्लियरली एलेबोरेट करना है व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कैसे होगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आपस में मिलकर काम करना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लाजमन लिखी जाती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे होगा, और वो वॉइड उसको दोनों पार्टीज में से कोई भी कर सकती है। ठीक है, समटाइम्स अगर कंसल्टेंट को ये लगे कि द क्लाइंट इज नॉट कोऑपरेटिंग, द क्लाइंट इज नॉट विलिंग, द क्लाइंट इज नॉट रेडी, क्लाइंट कई तरह की मुश्किलात क्रिएट कर रहा है, तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम विद द क्लाइंट, यू शुड स्विच टू सम अदर क्लाइंट। ठीक है, पर्टिकुलरली रिमेंबर वन थिंग कि जब हम कंसल्टेंसी फर्म्स रन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम बिला वजह अपना टाइम वेस्ट करें एक क्लाइंट के साथ, particularly in a case कि जब client is not willing, the client is not ready, the client is running out of budget, the client is not there to cooperate, तो उस वक्त कंसल्टेंट को बड़े अच्छे तरीके से बड़े प्रोफेशनल मैनर्स में थैंक यू करके वहां से वापस आ जाना चाहिए। अब उस जाहिर है कि थैंक यू की कुछ फॉर्मेलिटीज लाजमन होंगी। ठीक है, बाज़ औक़ात इवन द क्लाइंट और द कंसल्टेंट दे हैव टू पे सर्टेन डैमेजेस। ठीक है, अगर कंसल्टेंट को ये लग रहा है कि इन द स्टार्ट हमने कमिट किया था कि आप इस प्रोजेक्ट को एंड तक पहुंचाओगे, लेकिन एट अ सर्टेन स्टेज आपको ये लगे कि वेल द प्रोजेक्ट इज टू कॉम्प्लिकेटेड और आप इसको आगे लेकर नहीं चल सकते हो, तो देयर आर चांसेस, इवन मैं आपको सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर बता रहा हूं कि द कंसल्टेंट में हैव टू पे सर्टेन डैमेजेस टू द क्लाइंट। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि द क्लाइंट हैज टू पे सर्टेन डैमेजेस टू द कंसल्टेंट, कि अगर क्लाइंट की किसी वजह से द कंसल्टेंट्स टाइम इज बीइंग वेस्टेड। ओके, जिस तरह आप एक जॉब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसमें आप ये बताते हो कि जॉब में दोनों पार्टीज, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, दे कैन फिनिश द जॉब रिक्वायरमेंट। ओके, तो उस सूरत में सपोजिटली आप जनरली एक बात करते हो कि जी आपको 1 मंथ एडवांस सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी आइदर पार्टी को। अगर विदाउट नोटिस एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को छोड़ता है तो ही हैज टू और शी हैज टू पे 1 मंथ एडवांस सैलरी, और अगर एम्प्लॉयर विदाउट नोटिस एम्प्लॉय को छोड़ता है तो उसको 1 मंथ सैलरी देनी होगी। ठीक है, वंस द प्रोबेशन इज डन ऑब्वियसली। तो ये तमाम वो कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स होती हैं जिनके बारे में आपको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग वो होनी चाहिए, एंड यू शुड बी केयरफुल कि पहली बात तो यही आपकी कोशिश यही होगी कि ऐसी स्टेज ना आए। ओके, लेकिन सपोजिटली इफ द सिचुएशन कम्स तो वी शुड बी आल्सो रेडी कि किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस इवॉल्व वो कर सकती हैं। So that's all about the client consultant knowledge, और हमने यहाँ पर यह सीखा कि with the passage of time कंसल्टेंट की ओरिएंटेशन, कंसल्टेंट का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द स्पेसिफाइड इशू एंड द प्रॉब्लम दैट इंक्रीजेस, और क्लाइंट का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिड्यूसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट डिस्कशन नहीं है। बाज़ औक़ात the client is vigilant, the client is very active, the client is conscious, the client is knowledgeable, तो वो अपने नॉलेज को कंसल्टेंट के साथ साथ भी प्रोग्रेस करना, डेवलप करना वो पसंद करता है। ओके, तो अगेन ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा, इसमें हम कोई ऑब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सो इट इज अ सब्जेक्टिव मेजर जिसमें के क्लाइंट और कंसल्टेंट बोथ आर देयर टू डिसाइड अपॉन देयर फ्यूचर फेट। राइट, हमारा फर्स्ट सेशन टाइम खत्म हो रहा है, यहाँ पर मैं स्लाइड शेयर आपकी ऑफ कर रहा हूँ।